बचपन में एक आवाज़ थी, डुक 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 करके। तो वो एक इंस्पेक्टर थे, वहाँ से ऐसे गुजरते थे वो डुक डुक वाली बाइक में, और मैं ऐसे सोचता था, एक दिन मैं ऐसे चलाऊँगा। और सब लोग बोलते थे पैर नहीं मिलेगा, डॉक्टर ने बोला पैर नहीं मिलेगा, तो मैं ऐसा विजुलाइज करता था। मुझे मालूम नहीं ब्रेक किधर है, इसको क्या बोलते हैं। तो ऐसे मेरा बैसाखी रखा है, एक हाथ से पकड़ा और बैसाखी इधर है और चला रहा हूँ। वो मैं सोचता था, रात में घंटों भर तक सपना दिखता था ऐसा। 1997 व्हेन आई रिसीव माय फर्स्ट जयपुर फूड, 3 घंटे में साइकिल चलाया। विद इन 3 months आई लर्न हाउ टू राइड द बुलेट बाइक, सॉरी नॉर्मल बाइक, नॉट बुलेट। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि यस, मैं नॉर्मल लोगों के जैसे बाइक चला सकता हूँ। Each life is made up of mistakes and learning, waiting and growing, practicing patience and being persistent. Look for the silver lining whenever a cloud appears in the blue. I do not have a disability. I am differently abled. Disability is in our minds. In today's episode, I have a guest who's fought through different travails of life and come out as a winner and as an inspiration for many. Hello and welcome to Between Us. Make every conversation count. Today I'm in conversation with Mr. Vinod Rawat, adventurer, motivational speaker, a humanist, and many more. Mr. Rawat, thank you for joining us. थैंक यू। आपका story, I think, is something which is not just an inspiration. Sometimes when I read about you, I watch your talk, I feel like I'm a part of that journey of yours. It is very relatable. It is something which makes us believe that there is nothing which is not possible if we put our mind and heart to it. वेरी ट्रू। So, हमारे शो में हमेशा we always begin from the very beginning. I know that something happened at the age of 6, and that's where the entire story started. You met with an accident, and I know that because of whatever economic conditions were there in the family, we could not get the diagnosis done at the right time, and you had to lose your leg. Please talk me through that phase of your life. Yeah, it was not very easy. And when I think about my journey 43 years, 44 years back, if I go back into my past, I still remember each and every moment, each and every incident which happened at the age of 6. So I remember in those days, 80s, there was no bell in the bus, public bus. So driver is to hit the bus, conductor is to hit the bus twice to move, like bhagane ke liye. And the driver get the message कि okay जाना है. And to stop the bus is to just hit once. तो उसके side में. So as a child, I had another friend. And the recess time is to come out and watch that part. तो बचपन से हम लोग नटखट रहते थे, तो हमने सोचा हम प्रैंक करेंगे। बोला क्या, तो बस को ना पैसेंजर चलते रहेंगे तभी जाके हिट कर देंगे टिक टिक, और वो ड्राइवर निकल जाएगा। और ऐसा बहुत बार होता था। और कंडक्टर ने देख लिया एक दिन, और वो जस्ट हमें डराने के लिए ही was trying to chase us. वो देखकर हम लोग डर के भाग गए। And the road was very small. It was not even 90 feet, more less than that. And I crossed the road. सामने से एक डंपर आया बड़ा, एक पत्थर का डंपर होता है, और देखते देखते मेरा पैर उसके डंपर के नीचे चला गया। आई हैव नो आइडिया कि मेरे साथ क्या हो गया। बस मेरे मन के अंदर एक डर था, अब पापा का डर। बचपन में पापा बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। अब मालूम पड़ेगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो आई जस्ट विदाउट रियलाइजिंग कि मेरा पैर ऑलरेडी क्रश हो चुका है। वो उन्होंने हैंड ब्रेक मारा होगा शायद, अभी पता चलता है उसको हैंड ब्रेक बोलते। और माई लेग वॉज ऑन द टायर, एंड वो पूरा क्रश करके ऐसे लेके आके, सो आई पुल्ड माई लेग। तो हम लोग चपाती कैसे तोड़ते हैं, ऐसे स्किन तोड़ते तोड़ते मुझे लगा नॉर्मल है,
और मैं ऐसे खड़ा होके आई सॉ माई सिस्टर, स्कूल का गेट बंद हो गया था एंड शी वाज शोइंग द हैंड कि कम कम करके, अदरवाइज डैडी विल बीट अस। तो वो सिग्नल में समझ गया था, तो वो डर से मैं खड़ा हुआ एंड चलने का कोशिश किया कि आई जस्ट हैड अ फॉल देयर। और कार को कैसे न्यूट्रल में करते ऐसे कांपते, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। देन दे टुक मी टू द हॉस्पिटल। वहाँ पे मेरा ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन के बीच भी मैं उठा, देख रहा हूँ लोग कुछ कर रहे। दे पुट मी अ प्लास्टर समथिंग। आई हर्ड द कन्वर्सेशन दैट डॉक्टर्स आर आस्किंग 25,000 रुपीज टू सेव माई लेग। आई स्टिल रिमेंबर एज ऑफ 6 एंड माई पेरेंट्स वर स्ट्रगलिंग। तो मैं बच्चा था, मेरा तो आई वॉज हैविंग अ पार्टी देयर, पिकनिक कर रहा था 6 महीना, लॉन्ग 6 मंथ आई वॉज इन राजावाड़ी हॉस्पिटल हियर इन मुंबई घाटकोपर। और पता नहीं, छोटा था, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, कुछ पता नहीं, बट यही सब चलते रह गया। वहाँ पे व्हीलचेयर में बैठ के अलग अलग स्टंट करता था बचपन में, 6 साल की उम्र, और सीढ़ी के ऊपर से जंप करके लेके जाता था। आई स्टिल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। बट वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद जो मेरा रियल लाइफ शुरू हुआ, और कुछ चीज़ें अच्छी के लिए होती है और कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है। अभी समझ में आ रहा है, उस समय नहीं होता था। आई वॉज रिएक्टिंग, ओवर रिएक्ट होता था जो मेरे साथ बातें होती थी उस समय बचपन में। सो इट वॉज वेरी टफ, इट वॉज वेरी हार्ड एंड टुडे आई फील दैट पैसों की कमी की वजह से किसी की ज़िंदगी में इतना बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। शायद उस समय मेरे मम्मी पापा के पास 25,000 रुपया होते तो मेरा पैर बच सकता था। सो जब आप 6 मंथ्स हॉस्पिटल से बाहर निकले, तो दे हैड ऑलरेडी एट दैट पॉइंट इन टाइम इटसेल्फ दे हैड एम्पुटेड माय लेग। या 6 टाइम दे चॉप माय लेग, दे ट्राई टू सेव इट बट नहीं हो पाया, बिकॉज 6 महीने के दौरान क्या हो गया, पैसे का बंदोबस्त न होने के बाद वजह से पैर काटना ही पड़ा। तो पैर एम्पुटेशन के बाद भी मेरे को इतना रियलाइज़ नहीं होता कि मेरा पैर नहीं करके, बच्चा था। सो शुरुआत में तो मम्मी मुझे कंधे में उठा के लेके जाती थी कहीं पर, फिर किसी ने बोला कि इसको क्रैचेस के सहारे ये खुद चल सकता है, सो दे प्रोवाइड मी क्रैचेस। सो फिर क्रैचेस की वजह से मैं चलने लग गया। एंड यू कंटिन्यूड गोइंग टू स्कूल? Yeah, later on they have taken me to the schools where some school refuse to take me because handicap है, कोई बच्चे धक्के मार देंगे। तो एक स्कूल था रामकली करके भांडुप में, उन्होंने मुझे एडमिशन दिया एंड नॉट ओनली एडमिशन, उन्होंने मेरा 5th स्टैंडर्ड तक कोई फीस नहीं लिया डिसेबिलिटी देख के। सो बाद में पता चला कि वो जो प्रिंसिपल थे वहाँ के, तो उनके पैर में भी रॉड था, तो ही नो द वैल्यू ऑफ डिसेबिलिटी, लाइक ही नो द पेन। सो दैट इज़ वाई फर्स्ट लुक में उन्होंने बोला इनका पूरा जब तक यहाँ पे एजुकेशन होगा, और 5th स्टैंडर्ड ही तक था स्कूल, तो मेरा 1 भी रुपया फीस नहीं लिया वहाँ पर। और पर पढ़ाई के ऊपर मेरा ध्यान नहीं रहता था, मस्ती मजाक, और आई वॉज वेरी नोटोरियस जस्ट लाइक एनी अदर किड ग्रोइंग अप। आई थिंक सो। बट वहाँ पे कैसे होता था कि मैं जबरदस्ती घुस जाता था खेलने के लिए। नोबडी वांट्स मी टू कम एंड प्ले विद देम बिकॉज आई वॉज डिसेबल्ड। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया बचपन में। जैसे मैं बढ़ते गया तो बाद में फील हुआ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड अ नॉर्मल किड। देन आई रियलाइज एंड स्टार्टेड रियलाइजिंग ऑल माई लैकिंग, लाइक व्हाट आई एम लैकिंग, मेरे अंदर क्या कमी है, और मैं उस कमियों को खेल कूद के माध्यम से भरना चाहता था। आई वॉज ट्राइंग, आई ट्राई टू परफॉर्म। एक बैसाखी लेकर, पहले 2 था, 2 एक फेंक दिया, 21 से चलना शुरू किया। क्रिकेट खेलने के लिए जो मेरा कटा हुआ पार्ट है, जो एम्पुटेशन पार्ट, वो बैसाखी के अंदर रख कर क्रिकेट खेलता था, फिर दौड़ता था। तो ठीक है, उन लोग मुझे कभी कभी खिलाते थे, बट दैट पार्ट वॉज ओनली फॉर अ फन पार्ट, बिकॉज व्हेन आई रन फॉर अ बॉल और व्हेन आई प्ले, तो दे टू मेक फन ऑफ मी। उस समय मेरे को कभी उनका फन मतलब इतना सीरियस नहीं लिया कि उन लोग मेरे पर हंस रहे। बट लेटर ऑन व्हेन आई हर्ड दे स्टार्टेड कॉलिंग मी लंगड़ा, दैट हर्ट्स मी। वो मेरा नाम है यार, सबका नाम है, आप सबको नाम से बुला रहे हो, मेरे को लंगड़ा क्यों बोल रहे हो? और दैट पार्ट वाज वेरी पेनफुल और इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। मैं बोला ये चलेगा नहीं। तो वो सुनता था, तो मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए कभी उनके ऊपर बैसाखी से मारता था, कभी उनको धक्का देता था,
पर मैं हार जाता था हर बार क्योंकि आई वाज वीक. तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई. How was the environment at home? जब आप, after you got back home from the hospital, you went back to school. जो घर का माहौल था, जो सपोर्ट सिस्टम था, वो कैसे था? यस, वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. आज समाज हम जैसे लोगों को मीन्स डिफरेंटली एबल, दिव्यांग, अपाहिज, अपंग लोगों को उसी नज़र से देखते हैं, कमज़ोर, बेचारा. और ये शुरुआत हमारे घर से शुरू होती है. कोई भी हो, किसी के घर में दुर्घटना से कोई ऐसी बातें हो जाती है, वेदर इट्स अ चाइल्ड और एल्डरली पर्सन, और जो बाय बर्थ भी हो जाता है, तो आस पड़ोस वाले आके एक ही क्वेश्चन बोलेंगे, तेरा नसीब फूट गया. मम्मी पापा को, तेरा बेटे का पैर गया, वो कुछ काम करने अभी तो जिंदगी भर के लिए बोझ बन गया. वो बोल बोल के उनके दिमाग में डाल दिया गया. और फिर वही शब्द उन लोग मेरे लिए यूज़ करते थे जब ऐसे समय उनको समटाइम दे फील डाउन एंड अभी तू मेरे लिए क्या सहायता बनेगा, यू बिकम अ बर्डन फॉर मी इन माई ओल्ड एज, हाउ यू विल बी एबल टू हैंडल मी, हाउ यू विल बी एबल टू हेल्प मी यार. मेरे को आपको ज़िंदगी भर आपको उठा के लेके जाना पड़ेगा. बट God knows each and everyone, and God has a plan for each and everyone. Absolutely. That I realized later on. तो उस समय उनकी बातों में और वो जो बोलते थे वो मैं एक्सेप्ट कर चुका था, और वही मेंटेलिटी मेरा था कि नो, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. मैं ऐसा हूँ. So you have your 4 siblings? Yeah, In the I have 4 sisters and 1 brother. So we are together 6 of us. You were 6. Yeah, Yes. yeah. So I mean that. I'm the अच्छा, second one. I'm the Okay. second one. Yeah. The second. What about the rest of your siblings? उनका कैसे क्या? नहीं, they were very supportive. वो लोग छोटे थे और मुझे हम हमेशा प्रोटेक्ट करते थे. सो बहुत ऐसी बातें हुई, और इन सर्टेन एज एक पीरियड ऐसा आया कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए था. आई नीड अ सपोर्ट, एंड फॉर सपोर्ट आई वाज लुकिंग फॉर फ्रॉम माय ओन फैमिली. दो मम्मी इज टू लव मी, डैड इज टू लव मी, बट वो क्या है, दिखाते नहीं थे. बट मैं उस समय मेरा माइंड में ये होता था कि इन लोग भी मुझे वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे बाहर वाले कर रहे हैं. सो बेटर मूव आउट एंड लिव योर इंडिपेंडेंट लाइफ. तो मैंने उस दौरान बचपन में हमारे एरिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, तो उस समय बहुत गैंग वॉर, मारा मारी, ये सब चलता था. वहाँ से सोडा बॉटल फेंक, वहाँ से तलवार लेके आ रहे, जैसे फिल्मों में होते हैं. तो वो सब देख कर मज़ा आता था. मज़ा ये आता था कि मैं बोला यार, व्हाट इफ आई जॉइन सच काइंड ऑफ पीपल, So that you can. सो आई आप जवाब दे सकेंगे उन हाँ, लोगों को. प्रोटेक्टिव रहूँगा. क्योंकि मैं देखता था वहाँ पे मोटे होते थे, गंजे होते थे, सॉरी टू से दिस वर्ड, बट उनको कोई गंजा नहीं बोल रहा है, उनको कोई मोटा नहीं बोल रहा है, उनको कोई काला नहीं बोल रहा है, तो बट मुझे लंगड़ा क्यों बोल रहा है. सो बोला लेट मी गो एंड जॉइन सच पीपल. ये सब बातें हुई, और बोलते ना आप बुराई के बारे में सोचो और बुराई आपसे 10 कदम आगे रहती है. एंड वॉट एवर आई वॉज थिंकिंग इन माई माइंड, और वो पॉसिबल हुआ. How old were you at this time? से अराउंड 14-15, और फॉर 15-16 के बिटवीन में, मतलब आई डिसाइडेड टू मूव आउट. आई लेफ्ट माई हाउस एंड जॉइन वन ऑफ द लोकल गैंग देयर. सी दिस पार्ट आई एम नॉट सेइंग इन अ प्राउड मोमेंट कि मैं उसके में मुझे कुछ गर्व नहीं है, उस बात में कोई घमंड नहीं है. वो माहौल था, वो मौसम था, वो ऐसा समय था कि मुझे ऐसे लोगों का सहायता की जरूरत थी. पर मुझे मालूम नहीं था कि आगे जाके इट विल बी डेंजरस फॉर मी. आगे जाके मेरे को करियर, फ्यूचर, लाइफ कुछ नहीं मालूम था. आप हंसोगे अगर ये बात बोलूँगा तुम्हें. मुझे लगता था इंडिया यही है, महाराष्ट्र यही है, कैपिटल इंडिया का क्या है मालूम नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब कुछ भी नहीं मालूम था. दिमाग में एक ही चीज़ था, भाई बनने का है. लोग जो लंगड़ा बोलते हैं, बैसाखी लेके छीन के भाग जाते, फिर मैं हॉपिंग करके, लंगड़ी करके उनसे बैसाखी लाता था. तो इन सब चीज़ों से मुझे बाहर निकलना था. एक करते करते एक सुबह एक जेंटलमैन मुझे मिले. Now, Yeah. this gang, I'm sorry. So this gang, they were into just local जो आसपास के मार्ग जो होता था, और that was what they were like, local. Actually,
don't want to reveal something, but yeah, they were not local. They were something bigger than a local. Later on, I realized, and of course, मुझे उसकी वजह से कई बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, जेल में भी जाना पड़ा, और जब वहाँ से बाहर निकला मैं और देखा कि बाबा ये ज़िंदगी नर्क बन चुकी है, अब यहाँ तो फ्यूचर कुछ नहीं है. So you did not also have your जब आप इस घर से निकल गए थे, so you had completely cut out from your family after that? या मैं कंप्लीटली कट आउट था, बिकॉज थ्रू मतलब मेरे वजह से आई डोंट वांट देम टू बी इन अ ट्रबल. बाय दिस टाइम मैं ऐसी जगह पहुंच चुका था कि मतलब वहाँ से सिर्फ गंदगी और बुराई आएगी, अच्छी बातें कुछ नहीं आएगी. तो इन माय प्रेजेंस दे विल हैव मोर प्रॉब्लम. So better I said, let me face this challenge by my own rather than troubling them. Because already I have troubled them a lot in my childhood. And because of my disability also, they are so much disappointed. तो शायद उन लोग ऐसा सोचेंगे कि हमारे 5 ही बच्चे, छठवां नहीं था. तो यही कारण से मैं उनको तकलीफ देना नहीं चाहता था. इस दौरान how old were you when you were 17, 18, yeah, around that time? 19 के करीब पहुंच रहा था. ठीक है. I believe something happened which changed. You met somebody who kind of... Yeah. So actually something happened that night and it was a big mess over there. Some small gang fight had done, like, you know, उधर कुछ हुआ ऐसा. तो उस भागा दौड़ी में मैं छुप गया कहीं, क्योंकि I was not in the picture, but मेरा नाम बोला गया कि विनोद भी था, कोई अपना दुश्मनी निकालने के लिए. And I was not aware of that. मेरे को किसी और ने बोला कि ऐसा ऐसा है, you don't come to the picture, otherwise cops will catch you and they'll put you inside. Not only put you inside, they decided this time they are going to shoot you. मैं बोला यार ऐसा कौन सा बड़ा काम किया मैंने, एम आई क्रिमिनल, मतलब मैं टेररिस्ट हूँ या बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ. तो मतलब एक हिसाब से कॉलर भी टाइट हो जाता था, यार बड़ा भाई बन गया. एक ज़माने में जो लोग लंगड़ा लंगड़ा बोलते थे, चिढ़ाते थे, अब ये लोग लंगड़ा नहीं बोलते हैं, भाई कैसा है, भाई कैसा है. तो वो जो बोझ था दिमाग में, सिर में, वो बोझ निकल चुका था. सो वो एरिया में मुझे रीच करना था, तो आई हैव रीच अप टू दैट लेवल. उसके बाद क्या होगा आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. बट लेटर ऑन मैं जब सुनता था लोगों के बारे में, इसको मार दिया, उसको मार दिया, पुलिस के अलावा अपोजिट गैंग वाले भी दुश्मन बन गए थे, और सिंपैथी कोई नहीं था कि लंगड़ाए तो छोड़ देंगे, नहीं उसका दूसरा टांग भी काटना है. तो बोला भाई एक से ही मुसीबत हो रही, दूसरे भी कट जाएगी तो क्या होएगा. तो आई वॉज वेरी फनी फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली. फिर ऐसे करते करते एक जेंटलमैन मुझे फॉलो करते थे हमेशा. बट ही फॉलो करते थे मतलब आप, मतलब ही यूज्ड टू, he have seen me many places doing some kind of funny things, like, you know, ऐसा अट्टे कट्टे मुस्टंडे लोग के साथ में मैं एक दुबला पतला सा विद क्रचेस को स्टंट कर रहा है. यू नो सम फाइट्स आर गोइंग ऑन, आई एम विद देम. तो बोला ये बेचारा फंस गया शायद, उनका ऐसा सोच था. सो वन फाइन मॉर्निंग वी जस्ट मेंट, ऐसा रेंडमली ऐसे मिल गए, एंड ही सेड बेटा आई वांट टू टॉक टू यू. ओके. तो उनका जो लुक था, ही वाज फ्रॉम साउथ, तमिलियन थे, और उनका जो हाइट था अराउंड 6+ थे, और आर्मी कट और डार्क एकदम. तो मेरे को लगा ये कॉप है. बोला अभी ये तो गया मतलब. सो मेरे माइंड में कुछ और गेम चल रहा था. मैं बोला ये मेरे को पकड़ने के बोला मैं इसको मार दूंगा. सो आई हैव टू कैरी सम वेपन विद मी. सॉरी मुझे शर्म आ रहा है सब बात करने से, मगर मैंने सोचा इसको मैं मार दूंगा. तो बिफोर ही आई डू सम एक्शन, तो सामने से उन्होंने एक वर्ड बोला कि सन जीसस लव्स यू एंड गॉड हैज अ ग्रेट प्लान इन योर लाइफ. माय गॉड, उसको उस समय मेरे को नहीं मानता उसको गूज बम बोलते करके, और मेरा एकदम पानी पानी हो गया शरीर. और पहली बार जिंदगी में, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, मेरे मन के अंदर डर आया. बिफोर दिस नेवर एवर, आई नेवर हैड दैट फियर इन माय लाइफ. मैं कभी नहीं डरता था, किसको नहीं डरता था, बट बहुत गिल्टी फीलिंग हुआ कि मैं बहुत गलत काम करने जा रहा था. एंड देन आई सेड टू दिस मैन कि सर आप बोल रहे हैं. तो ही उन्होंने मुझे प्रवचन बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया. तो मेरे माइंड में एक शैतानी गेम चल रहा था. मैं बोला ये आदमी सही है. एक सीरियल आता था बचपन में,
और मैं बाद में मेरे दोस्तों को बोला, विक्रम बेताल होता था ना, मैं बोला वो विक्रम है, मैं बेताल है बोला। तो ये मेरे को स्टोरी सुनाएंगे, बट आई विल नेवर, ही कैन नेवर फाउंड मी बोला। बट स्टिल इन अदर साइड इन माई माइंड वन आइडिया प्लान चल रहा था। बोला क्या? तो बोला यह आदमी राइट है, गॉड ने इसको अपने लिए भेजा है, तो दिस थ्रू दिस पर्सन आई विल गेट अ शेल्टर समवेयर वेयर आई कैन हाइड माई सेल्फ। जब तक ये मामला यहाँ शांत हो जाता है, सो आई विल कम बैक एक्शन में। तो सी वो मेरे को पकड़ने के पहला गॉड हैज हिज ओन प्लान, सो गॉड कॉट मी देयर एंड ही टुक मी वन एनजीओ। एक एनजीओ लोअर पर में बॉम्बे टीन चैलेंज नाम के एनजीओ है। ये एनजीओ डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, CSW कमर्शियल सेक्स वर्कर के ऊपर और ड्रग एडिक्ट्स लोग को रिहैबिलिटेट करते हैं। सो दिस अंकल टोल्ड मी, आई सेड सर आप बोल रहे जीसस है, और मेरे को स्टोरी बताया, यीशु मसीह सूली पे चढ़ गए, 3 दिन बाद जिंदा हुए, हमारे पापों के लिए मरे। तो वो सुनने में कुछ फनी लग रहा था। आई सेड चलो ना सुनते रहते, मगर मैं बोला सर ऐसा है तो मेरे को ये नर्क से निकालो, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, प्लीज टेक मी समवेयर, कहीं मेरे को पर यहाँ पे नहीं रहना। तो बोला कल सुबह 10 बजे मिले मुझे, ऐसे ऐसा। तो ही टुक मी टू वन प्लेस जहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे लोग थे, गर्दुल्ले लोग, हमारे मुंबई के भाषा में बोलते हैं, ड्रग एडिक्ट्स विद ऑल रैक पिकर्स एंड ऑल। तो मुझे कुछ फनी लगा, मतलब किधर आ गया मैं, पर बचाना था खुद को। तो बोला चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और मैं वहाँ पे बैठा वहाँ पे उनके साथ। तो डायरेक्टर साहब से बात हुई, जो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर थे। बोला बेटा अगर आपको एक चांस मिला है, इट्स अ गोल्डन चांस, सेम वर्ड ही यूज दैट डे, इट्स अ गोल्डन चांस फॉर योर लाइफ। अगर आपको ज़िंदगी बनाना है तो यहाँ रहना पड़ेगा, झाड़ू पोता मारना पड़ेगा और 20 जन के लिए चाय बनाना पड़ेगा। मैं बोला अभी क्या बात है भाई, चाय बनाने का ये करने, अपन तो भाई था, तो ये क्या करूँ। बट ठीक है, दूसरा मन बोला नहीं जिंदा रहना है तो ये भी करना पड़ेगा। सो यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज यू वांटेड टू, वो बेसिक चेंज नहीं आया था, बट आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालना था। कुछ नहीं, वो मतलब क्या बोलता है, दिखावा कुछ और था और इंसान कुछ और था। करेक्ट। तो मुझे शेल्टर चाहिए था, मुझे कोई जगह चाहिए था छुपने के लिए, क्योंकि मेरा कोई रिलेटिव नहीं, कोई मुझे रख सके ऐसा। अब तक मैं इतना बदनाम हो चुका था कि किसी को नोबडी वांट्स मी टू स्टैंड नेक्स्ट टू देम, क्योंकि फिर उनका नाम भी आ जाएगा। और ऐसा हुआ बहुत बार मेरे साथ, किसी को देखा है तो जो अपोजिट गैंग वाले उसको पकड़ के पीट दिया, हाँ तेरे को उसके साथ देख, तू भी उसके गैंग का है। तो यहाँ ऐसा हुआ और मैंने बोला ठीक है। तो मैं ऑफिस का दरवाजा से बंद कर देता था, फिर झाड़ू पोता मारता था फटाफट, फिर वो करता था। ऐसे करते करते कुछ 1 साल बाद सर ने मुझे पूछा कि पढ़ाई करोगे? बोला हाँ। तो वहाँ एक और फ्रेंड हुआ करता था जो दोनों पैर से डिसेबल थे, उनका नाम स्टीवन है, अभी भी है। तो मुझे बाइबल से कुछ अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताते थे, बाइबल के वर्ड। और वहाँ गिटार हुआ करता था और पियानो। तो मैं बोला भाई मैं तो छुरी तलवार से खेलता था। तो मैं उसके गिटार को कभी हाथ लगाता था ना, इसको हाथ नहीं लगाने का, तेरा काम चाकू तलवार है, तो ये नहीं। तो ऐसे मस्करी में बोलता था। तो बोला तू नहीं कर पाएगा। जब वो सो जाते थे ऐसा खराटे मार के, तो मैं गिटार लेके ऊपर जाता था और उसको टिंग 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 करते रहता था। You don't know how to play. Don't know how to play. You were just ऐसे टिंग 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 fiddle कर रहे थे। हाँ। तो उस समय एक फेमस मूवी थी डर, और जिसमें था टिंग डिंग 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 डिंग। तो मैं ऐसे टिंग टिंग करके वो आवाज आया टिंग, फिर नीचे डिंग, ऐसे करते करते वो गाना ऐसे बज गया, वही बस। तो और आई एम गुड लिसनर, तो मेरे को बराबर मालूम है वो टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग। तो मैं ऐसे करते करते महीनों भर तक, एक दिन स्टीफन भाई बीमार था, सोए थे, तो शायद उनको नींद नहीं आ रहेगा। वो बीमार की वजह से उसका खराटे की आवाज नहीं आई मुझे। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू हियर हिम लिसनिंग, मतलब वो खराटे मारे तो मतलब वो डीप स्लीप में चलो गिटार लेके चोरी करता था उसका। तो उन्होंने सुना कुछ बज रहा है, विनोद हाँ आया, जाके छुपा दे गिटार बाहर। गिटार कौन बजा रहा है? बोला नहीं मैं ऐसे साफ कर रहा था। बोला नहीं लेके आ, बजा। बोला सर नहीं बजा,
तो वो मैंने बजाया. किधर सीखा, किसने सिखाया, कुछ नहीं से सुन. Then he helped me to play some notes, chord, and praise God कि it's a God gift. तो तलवार छूट गई, गिटार मिल गया, गिटार बजाने सीखा. एंड हम लोग वहाँ प्रार्थना करते थे दूसरे दूसरे कंट्री के लिए, हॉस्पिटल्स, बीमार लोगों के लिए. तो पूरा लाइफ ट्रांसफ़र हो गया. तो अचानक ना मेरे अंदर एक परिवर्तन आया. सो आई एम नो मोर द सेम विनोद. My life was totally transformed. So I surrendered my life to God. And I said, henceforth, मैं वो गलत मन लेके नहीं चलूँगा. So I was totally changed. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन यू वर, पर्सनली आई फील दैट एक कोर में ना हमारे अंदर हमेशा जो हुएवर वी बिकम, हमें ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट एट द कोर यू आर ऑलवेज द पर्सन यू आर टुडे. सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी चीज़ की वजह से हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए हो, बट आई थिंक एट द कोर आई एम श्योर विल गेट टू हियर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. I think that inherent innate goodness you had within, वो छुपा हुआ था, वो बस बाहर निकल के आ गया. Before we go into the next phase, आप अभी भी गिटार प्ले करते हैं, पियानो? Definitely. अभी बोलते ना, half knowledge is dangerous. So I'm not very perfect professional guitarist. ये गॉड गिफ्ट है. एंड सॉरी, थोड़ा टॉपिक चेंज. मेरा बेटा भी है 16 साल का. लॉकडाउन में मेरा गिटार उधर ही है, मैं बजाता था. बोलता है, डैड कैन आई ट्राई योर गिटार? बोले, हैव टू लर्न. आई जस्ट वांट टू प्ले. वो भी टिंग टिंग करते करते टुडे ही प्लेस बेटर देन मी. नेवर वेंट टू एनी क्लासेस. Correct. Yes, I do play guitar. I played for the church also. I was a worship leader. So we play for the hymns and all. So I never learned anywhere. Whatever Stephen taught me. So I play. I performed. What does music mean to you? मतलब आपके लिए क्या? Music brings energy. It gives peace. It really gives, मतलब एक अलग और एरोमा है. मतलब आप चाय पीते तो पीने के पहले उसका खुशबू जो है वही आपका मन को एकदम लुभा जाता है. तो म्यूजिक, गिटार हाथ में लेते ही तो पूरे बॉडी में बहुत अच्छा फील होता है. एंड स्पेशली व्हेन यू नो टू प्ले, इट्स नॉट जस्ट किसी के उठा लिया, शो के लिए फोटो खींच दिया. सो वी वर जस्ट वेटिंग, अपना उंगली रुका रहता है कि कब बजाऊं. एंड आई प्ले फॉर माई सेल्फ. आई डोंट प्ले फॉर अदर्स टू इम्प्रेस अदर्स और समथिंग. गिटार खरीदने के लिए बहुत साल मैंने प्रैक्टिस किया. थोड़े थोड़े पैसे जमा किया, गिटार खरीदूंगा. आप लोग सोचेंगे 2-5 हज़ार रुपये का. नहीं, ड्यूरिंग दैट पीरियड हमको सैलरी नहीं मिलती थी. मेरे को खुद का गिटार लेना था. बच्चे लोग मेरे भाई बहन लोग छोटे थे. और जब मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इट वाज 1997. और द फर्स्ट कॉल आई डिड टू माय पेरेंट्स सेइंग, मम्मी पापा मैं फलानी जगह में सेफ हूँ. बिकॉज दे हैड नो न्यूज़ अबाउट मी. एंड बातें ऐसे फैल रही थी कि विनोद मर गया, किसका इनकाउंटर हो गया, या तो गुंडे लोग ने मार दिया उसको. सो आई गेव देम द एड्रेस. दे केम टू मीट मी. एंड जब मैंने पापा को बुलाया और वहाँ मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं जाऊँगा बांडुप में, मेरे घर पर कुछ बन के जाऊँगा, एक इंसान बन के जाऊँगा, वो वाला विनोद बन के नहीं आऊँगा. एंड सी व्हेन जब मैंने डिसाइड किया एंड गॉड स्टार्टेड सपोर्टिंग मी, अंदर वो फेथ बिल्ड हुआ. Everything is your faith. If Absolutely. you don't have a belief factor, you cannot become anything. You're none and nothing for yourself also. And I started believing कि yes, मेरा पैर होगा, मैं चलूँगा.
By this time, I'm walking with the crutches. From the age of 6 to 26, 25, 22, I don't know the figure, but I was walking with the crutches. The moment I believed, the moment I had faith, like, yes. And that same year, 1997, someone told me about Jaipur Foot. I just walked to the Jaipur Foot Center here in Parel, KM Hospital. And they said, इससे पहले भी बहुत सारी जगह गया था, पर उन्होंने डायरेक्ट ना बोला था, आपको पैर मिल नहीं सकता है क्योंकि आपका जो एम्पुटेशन पार्ट बहुत ही बैड है. इट्स इन अ क्रिकेट शेप, पेंसिल का पॉइंटेड शेप है, ऐसा ओवल चाहिए फिटिंग करने के लिए. तो बोला एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा अबव द नी. बोला नहीं मांगते ऑपरेशन, आई एम हैप्पी विद माई क्रचेस. बट हियर इट केम जयपुर फुट सेंटर, दे गिव मी होप सेइंग कोशिश करेंगे. That word Koshish was a big hope for me. And I was there till 5 o'clock in the same place, sitting and praying in my heart and visualizing. Yes, I started walking. और पेशेंट लोग चलते थे ना, उनको देखते थे पैर, तो उनको बुलाते थे, जरा कितना दिन लगता है चलने को, दुख रहा है क्या, नहीं मैं भी चल पाऊंगा क्या. तो और उनको पूछ के 10 बार वो कारीगर जो बना रहा था टेक्नीशियन, उसको 10 बार पूछा, 50 बार पूछा. बोलता भाई बैठ, तेरे को पैर मिलेगा, चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, मगर पैर मिलेगा. बिलीव मी, जैसे पैर मिला विद इन फ्रिक्शन ऑफ टाइम, वो लोग बोलते हैं तू झूठ बोल रहा है, तूने ऑलरेडी पहला पैर पहन चुका है. बोला साहब पहली बार पहन रहा हूँ. एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल. 5 बजे छुट्टी हो गई, भेज दिया उन्होंने. कपड़े मेरे थोड़े ख़राब थे. दादर स्ट्रीट में जाके एक वाइट पैंट 100 रुपये का लिया रोड से, एक टी शर्ट लिया, 30 रुपये का एक चश्मा लिया. शौचालय में जाके नहा स्नान भी किया अच्छे से, मस्त क्लीन शेप करके. आई वॉकड इनटू माय सेंटर, टीन चैलेंज. तो स्टीवन मेरे को बोलता है कौन चाहिए. अरे बोला विनोद बोल रहा हूँ, मैं भी विनोद है. बोला एंड दे कांट बिलीव कि मैं हूँ. आई थ्रोड माई क्रचेस देयर. उसके बाद मैंने क्रचेस का भी हाथ नहीं लगाया. एंड सी कितना ट्रांसफॉर्मेशन, फुल फिजिकली चेंज, मेंटली चेंज, सब कुछ. देन आई कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड दे केम टू मीट मी. सो माई डैड सॉ मी वॉकिंग, ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. एंड देयर आफ्टरनून में लंच के लिए गए हम लोग. वहाँ बैठे बैठे मेरे पापा ने क्या मेरे दिमाग में सोचा पता नहीं, और उन्होंने एक ब्रोशर दिखाया मुझे. वो लाए थे पहले से, कुछ मालूम नहीं, उनके लिए लिया रहेगा शायद. ही शोड मी अ ब्रोशर ऑफ ए मोटर बाइक सेइंग हीरो होंडा स्प्लेंडर. बोलता व्हाट इफ आई बाय दिस बाइक फॉर यू, विल यू बी एबल टू राइड. नो. बोला पापा मैं अभी चलना सीखा, मैं कैसे करेगा. तो ही स्क्रीम्ड ऑन मी. 20 लोग को भगाता था अकेला, पॉसिबल था क्या अपंग आदमी के लिए, ये क्यों ना हो सकता तेरे से, यू कैन डू इट. बस वो जागृति उन्होंने मेरे मन के अंदर डाली. जब पैर मिला 3 घंटे में मैं साइकिल चलाने सीखा. ये बचपन का ही सपना था, एडवेंचर स्पोर्ट, और मैं किसी को बोल नहीं पाता था. किसी को बोलेगा तो उन लोग मेरे को हंसते थे, लंगड़े चुप. बचपन में एक आवाज़ थी डुक 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 करके. तो वो एक इंस्पेक्टर थे, वहाँ से ऐसे गुजरते थे वो डुक डुक वाली बाइक में. उसको क्या बोलते थे मालूम नहीं, जैसे आवाज़ आएगी ना कान में, मैं दौड़ दौड़ के वहाँ जाता था, तो ऐसे निकल जाती थी. कभी कभी सामने से आते थे डुक 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 मस्त में, और मैं ऐसे सोचता था एक दिन मैं ऐसे चलाऊंगा. और सब लोग बोलते थे पैर नहीं मिलेगा, डॉक्टर ने बोला पैर नहीं मिलेगा. तो मैं ऐसा विजुलाइज करता था, मुझे मालूम नहीं ब्रेक किधर है, इसको क्या बोलते हैं. तो ऐसे मेरा बैसा की रखा है, एक हाथ से पकड़ा और बैसा किधर है और चला रहा हूँ. वो मैं सोचता था, रात में घंटों भर तक सपना दिखता था ऐसा. पूरा होगा नहीं होगा पता नहीं. 1997 when I received my first Jaipur foot, 3 घंटे में साइकिल चलाया. Within 3 months I learned how to ride the normal bike, not bullet. हमारे टीन चैलेंज के स्टाफ लोग थे, उसमें से राज करके उन्होंने मुझे उनकी स्प्लेंडर सिखाई चलाने. एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि यस मैं नॉर्मल लोगों के जैसे बाइक चला सकता हूँ. एंड दैट डुक डुक इन ईयर 2000 शुक्ला जी स्ट्रीट में ऐसे खड़ी थी बॉम्बे में, और मैं बाइक को ऐसे हाथ लगा रहा था सोच के कि ये मेरी होगी.
अब तक मुझे मालूम पड़ गया डुग 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 का नाम क्या है, इसको बुलेट बोलते हैं। तो बोला अच्छा, तो जिसका बाइक था बोलता डोंट टच। तो बोला कुछ नहीं जेब में, एक दमड़ी नहीं। बोला यू वांट टू सेल इट, आधा इंग्लिश आधा कच्चा पक्का, बिकॉज मालूम है मुंबई में इंग्लिश बोलेगा तो थोड़ा भाव मिलता है। सो आदमी बोलता है चलो विल हैव अ कप ऑफ कॉफी देन विल डिस्कस। बोला यू ड्रिंक आई विल सिट विद यू बिकॉज आई डोंट ड्रिंक टी एंड कॉफी। बोला ठीक है। बोलता आई डोंट वांट टू सेल इट, आई वांट टू गिव इट टू समवन हु कैन टेक केयर ऑफ इट। मुझे लगा मस्करी कर रहा है, मुंबई है ऐसे कोई बोलता है क्या। मैं भी बोल दिया आई एम द राइट पर्सन, यू कैन गिव इट टू मी, आई विल टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट। तो वो कन्वर्सेशन उधर ही हो गया। उन्होंने मेरा नंबर लिया, उस समय मोबाइल नहीं होता था। जो ऑफिस में मैं था लोअर पर में, इट वाज एन वेयर हाउस, आगे दुकान पीछे मकान, आगे ऑफिस था पीछे हम लोग रहते ये थे। ऑफिस लाइक ये कब हुआ? आफ्टर यू आपका जयपुर हाँ, फूड का जयपुर फूड, आने के हाँ, बाद? हाँ। हाउ डिड यू गेट दिस जॉब? दिस केम थ्रू द फ्रॉम द टीन फाउंडेशन और? No, I was in Teen Challenge only. I was still I have not done any job. I'm working in the sense I'm an inmates in Teen Challenge, Okay. where I went for the rehabilitation. Okay. So that Teen Challenge only gave me the shelter where Stephen, me, and we were 4 of us, homeless children. They were staying there. So हम लोग वहीं पे inmates थे. We were taking care of the center. छोटा मोटा काम, काउंसलिंग करना बच्चे लोग को, प्रेज एंड वर्शिप होता था। तो मेरा काम था जो स्ट्रीट में जाके ड्रग एडिक्ट्स लोग होते ना, बॉम्बे सेंट्रल, बैंड्रा, इधर उधर जाके ड्रग एडिक्ट्स लोग के साथ बात करना, अच्छा। उनको काउंसलिंग करना कि मत पियो, ऐसे अच्छा नहीं होता है। फिर प्रार्थना करते थे हम लोग उन लोग के लिए। तो उन लोग भी ऐसे बोलता था। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग, मेरे को कोई अच्छा बात बोलेगा तो मैं वही बोलता था विक्रम बेताल वाला, वो विक्रम है मैं बेताल है, नहीं मिलने वाला है। तो मैं जब उनके लिए प्रार्थना मेरे को मैं अपने बारे में सोचता था कि मुझे भी ऐसे लोग प्रेयर करते थे, समझाते थे। पर आज मेरी बारी है। तो कोई सुनते थे, कोई नहीं सुनते थे। कितनों ने मारा भी रोड में, पर वो पुराना विनोद मर गया। अभी नया विनोद मारने वाला नहीं है, प्रार्थना करने वाला है, बचाने वाला है। तो उस दौरान उस सड़क में जाते समय मुझे ये बाइक दिखी और वहाँ पर वो मिले जो उनका नाम निश्चित है। तो मैंने उनको अपना लैंडलाइन नंबर ऑफिस का दे दिया जी। 49203006। बोला हाँ। तो बोला आई विल कॉल यू आफ्टर 15 days एंड लेट यू नो। बोला ठीक है। उसका कॉल आया नहीं। मैंने प्रार्थना करते गया बिकॉज नाउ माई पावर इज ओनली प्रेयर। And it's the greatest superpower. No body, no money, nothing. Yeah. Only prayer. And anything I want, no. I've seen that. Sorry, मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ। एक शूज आया था, हाई एंकल शूज मुझे पसंद थे। तो पेपर में आया था 50% डिस्काउंट वुडलैंड। तो मैंने उसको कटिंग किया, प्रेयर इधर लिखा दिस बिलोंग्स टू मी। वो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। मतलब गॉड नोस, प्रभु तू जानता है क्या है। मैंने प्रार्थना किया, उसको रखा मेरे बाइबल के अंदर और रात को सोया। सुबह स्टीवन को बोला ये शूज मेरा है, दिस इज माई शूज, गॉड विल प्रोवाइड मी। नेक्स्ट डे आफ्टरनून को हमारे डायरेक्टर आए एंड दैट वाज कॉस्टिंग 750 रुपीज। एक एनवेलप में मेरे को बोला रावत अंदर आओ। बोला क्रिसमस आने वाला है। हाँ। एक एनवेलप दिया, बोला गो बाई समथिंग फॉर योरसेल्फ। कितना है मालूम नहीं, क्योंकि अपने को शर्म आता है ना उसके सामने सबके क्या खोल के रखने। तो मैं गया, बोला अंकल ने पैसा दिया। बोलो कितना दिया? खोल के देखा तो 750 रुपीज। मैं सच में रोया। मैं स्टीवन को बोला प्रेज गॉड, और जाके शूज लेके आया और फिर स्टीवन को दिखाया दिस इज माई शूज वो फोटो के साथ। सो ये ऐसी बातें हुई। और किसी की प्रॉपर्टी को अपन क्लेम नहीं कर सकते। दैट वॉज हिज बाइक, इट इज़ हिज चॉइस वेदर ही वांट टू गिव और नॉट। एंड मैंने वो मोटिव से कभी नहीं प्रार्थना नहीं किया कि वो दे दे। आफ्टर 15-20 days आई रिसीव वन कॉल 10:45 रात में। इंटरकॉम था ना उसका। बोला कैन आई टॉक टू विनोद रावत? आई सेड यस स्पीकिंग, आई एम निश्चित। में रिमेंबर अपन मिले थे, अब बुलेट के बारे में बोल रहे थे। सर मैंने अभी तक बुलेट चलाया नहीं, और मैंने हजारों बुलेट वालों को परेशान कर दिया। एम्पीटर, इसको क्लच, हाँ इसको गियर, किक मारूं क्या प्लीज़? मैं हैंडीकैप हूँ थोड़ा सा, बार थोड़ा एडवांटेज लेता था मगर बहुत सारे अच्छे थे। मार के देखो, फिर वो सब फुस करके आवाज आता था उसमें, डुक 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 चालू हो जाता।
तो वो मेरे को कभी चलाने किसी ने दिया नहीं था, वो सिंपैथी बेसिस में किक मार दे बेटा बैठ जा गाड़ी में। ये बंदे ने फ़ोन किया, अब भी आधा घंटे में आ जा, आई एम गोइंग टू बैंगलोर, 20 दिन में मुंबई में नहीं हूँ, यू कैन टेक केयर ऑफ माई बाइक। प्रेज गॉड, ये सपना भी पूरा हुआ। वो बंदे के पास गया, फुल टैंक करके उसने गाड़ी दिया, और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है क्या, कि कैसे मारो उसको मालूम ही नहीं इसका पैर नहीं करके, वो बंदे ने चालू भी करके दिया। सी इट इज हिज हैंड। यस। और वो गाड़ी को मैं कैसे भी आड़ा टेढ़ा गियर डाल के मालूम नहीं क्या क्लच छोड़ा ही नहीं, और उसको ऑफिस तक लेके आया। तो उसके बाद फिर मेरे कंपाउंड में एक मैकेनिक थे बुलेट के, उनको पकड़ के फिर मैं ट्रायल मार के, एंड टुडे नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड नोज मी एज अ राइडर यस। एंड रॉयल एनफील्ड राइडर। आई राइड फॉर रॉयल एनफील्ड कंपनी ऑल्सो। उनके मैगजीन्स में बहुत सारे फोटोज है, स्टोरीज है, एंड आई गिव क्रेडिट टू गॉड एज वेल एज निश्चित। वो जो बाइक 2000 में मुझे दी थी, ईयर 2000 में, टुडे इज 2023, दैट बाइक इज स्टिल विद मी। हर नेम इज लैला, मैं उसका मजनू। और निश्चित बोलता है ये बाइक तेरी है, मेरी नहीं है। इससे पहले कि मेरी नीयत खराब हो जाए, ये तेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे। मैंने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया। सो नाउ निश्चित इज माय फैमिली फ्रेंड नाउ। तो बोलता है नाउ दिस बाइक बिलोंग्स टू योर सन जॉन। वेल ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू सेल दिस बाइक। और वो बाइक अभी तक है, वो मेरी पहचान है। सो वो जो बाइक आपके पास आया, दैट वाज आल्सो अनदर फेज ऑफ योर लाइफ स्टार्टेड, राइट? Yes. क्योंकि हाँ, योर द एडवेंचर स्पॉट लाइफ begins with the bike. या बाइकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। Yes. तो ये कैसे शुरू हुआ? तो अभी पूरा मतलब जिंदगी कहाँ से कहाँ, टोल मटोल, वहाँ गुंडागिर्दी छुट गया, यहाँ शैतान से संत बन गया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में जाके, जेल में जाके हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते थे, चिल्ड्रंस डे बच्चों का। फिर बाइक जब आया तो बाइक के ऊपर बहुत लगाव था, मतलब मुझे बाइक चलाना है। वो डुक डुक बचपन की वो चल रही, सिटी में तो चला रहे। तो बाद में क्या हुआ सर, एक दिन मैं राइड कर रहा था, तो तब तक मैं वाशी नई मुंबई चला गया था रहने के लिए। तो वहाँ मैं वाशी ब्रिज के ऊपर वो बुलेट चला था, एंड इट वाज 15 अगस्त। तो 15 अगस्त एंड 26 जनवरी 2 ही दिन मिलते हैं हमको, जिसमें हम लोग अपना नेशनल फ्लैग लगा के वी कैन शो अप लाइक वेयर इंडियंस। तो वो लगा के मैं अपना वाशी ब्रिज के ऊपर चला रहा था, और मस्त में अपने मौज मस्ती से। पीछे से एक बाइकर आया एकदम रर करके बुलेट में, बड़ा फ्लैग, फुल गियर एंड ऑल, बाइकिंग गियर। बोलता है यू गोइंग टू बैंड्रा? बोला यस आई एम गोइंग टू। मैं बोला इसको कैसे मालूम पड़ा मैं बैंड्रा जा रहा हूँ? चल फॉलो मी, यू गोइंग फॉर द रैली? मैं बोला नो आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट द रैली। फॉलो मी। उसके साथ चला गया। बैंड्रा जैसे पहुंचा, वहाँ देखा 1 2 3 हजारों बाइक, सब डुक डुक थे, ओनली डुक डुक, और सब नेशनल फ्लैग विद बिग लाइक नो ऐसा आड़े टेढ़े सब राइडिंग गियर वियर। वहाँ पता चला भाई ये तो बाइकर्स क्लब भी होता है। बाइकर्स लोग राइड करने का, तो उनके सुना, 1-2 जन से दोस्ती हुई, तो उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू जॉइन अस? अब तक किसको मालूम नहीं मेरा पैर नहीं करके, बिकॉज व्हाट हैपेंड मोस्टली व्हेनेवर पीपल कम्स टू नो, नॉट नाउ, इनिशियल में, कि दिस फेलो इज हैविंग वन आर्टिफिशियल लिम्ब, तो दे टू रिजेक्ट मी। तो रिजेक्शन जो था, एक हिसाब से मेरा डर नहीं था, इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। मोमेंट पीपल रिजेक्ट मी फ्रॉम XYZ प्रोजेक्ट, आई विल फोकस ऑन दैट, आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट, कि बाबा नहीं मैं कर सकता हूँ। देन पीपल विल कम टू मी, नहीं चलो आ जाओ। तो ये बाइकर क्लब थी, और ये सब हाई फाई थे सर। बुलेट तो है मेरे पास, पर अपना आमदनी उतना नहीं है। NGO में काम कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी सैलरी इतना आता है। वो शूज़ बोला ना, प्रार्थना करके शूज़ मिला, प्रभु बोलेगा अरे तो वो स्वार्थी बन रहा है अभी। हाँ एक तो पैर भी दे दिया, ऊपर से मशीन बाइक चला रहा इतना हैवी, और फिर गियर भी दूँ तेरे को, और लंबा टूर करेगा, लफड़ा हो जाएगा। तो मैं कन्वर्सेशन अपना चालू था, गॉड का अपना। तो ये बाइकर्स क्लब ज्वाइन किया। वो लोग एक कॉफ़ी शॉप में मिलते थे बैंड्रा में, मौका कुछ तो भी कॉफ़ी शॉप था। उसका एक कॉफ़ी 250 रुपये का था उस समय, तो अपना कैपेसिटी नहीं था, मैं बाहर ही खड़ा रहता था बाइक के वजह। हाँ कम बोलने में, और भी मैं कॉफ़ी पीता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला वी आर गोइंग फॉर ए राइड, वी आर गोइंग टू लद्दाख। बोला लद्दाख क्या है?
जैसे मैं बोला आप कंप्यूटर में कमजोर हो थोड़ा, तो इधर उधर पूछ के लद्दाख का इन्फॉर्मेशन निकाला। तो बोलता है लद्दाख इज अ बाइकर्स पैराडाइज। हर कोई बाइकर उसका एक सपना होता है एक बार लद्दाख जाऊँ क्या है। बस मैं एक्सप्लोर करने लगा लद्दाख के बारे में, और बस फोकस अभी वही है, लद्दाख जाना है। दिस इज स्टोरी ऑफ 2009, 2010। इन्होंने बोला XYZ खर्चा आएगा, 60,000 रुपया खर्चा आएगा, और ऐसे ऐसे बोला ठीक है, पर हमारा क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा 1,000 रुपये देके, और ट्रायल बेसिस के लिए राजमाची करके जगह जा रहे। लोनावाला में एक ऑफ रोडिंग है राजमाची, और मानसून में ही वहाँ पे सब बाइकर्स लोग जाते हैं। वो डायरेक्ट ऐसे 90 डिग्री है, मतलब इट इज लाइक जो जैसे लद्दाख का हाँ, ये है टेरेन, उसी तरह का वहाँ पर है फॉर प्रैक्टिस। तो जो आदमी ये पार कर जाएगा तो ही इज एलिजिबल टू गो फॉर लद्दाख टूर। तो बोला ठीक है, और मैं उस समय मेरी गाड़ी को थोड़ा मॉडिफाई किया था, मैं अपना बाइक लेके उनके साथ चले गया। नाइट राइड था ये भी, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ विद माई आर्टिफिशियल लिम्ब, और क्या हो रहा है वो मुझे पता था, किसी और को पता नहीं है। पैर सरक जा, मतलब लिम्ब थोड़ा बाहर निकल रहा था, कभी गियर बराबर शिफ्ट नहीं हो रहा था, और पूरा बैलेंस करना पड़ रहा था, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा था गाड़ी। सब लोग बोल रहे थे ऐसे क्यों चला रहा है, किसको मालूम नहीं क्या हो रहा है। तो मैं गया उनके साथ और राइड किया। नाइट में हम लोग टेंट में सोए थे, सब कैंपिंग वगैरह हुआ। तो रात को सोते समय मैं अपना पैर निकाल देता हूँ। तो पैर निकाला तो वहाँ पे उन्होंने देखा इसका पैर नहीं है। तो वो जो मेरा पार्टनर था टेंट में सोता, उसने जाके कैप्टन को बोल दिया, कैप्टन ऐसा ऐसा है। तो सब लोग ऐसा टॉर्च मार के पीपिंग कर रहे थे, अरे क्या है, बाइक लेके आया ऊपर। तो मॉर्निंग में सबके सामने मुझे खड़ा किया, बोला वी अप्रिशिएट यू आर अ गुड राइडर, ऐसा ऐसा, बट सॉरी आप हमारे क्लब का मेंबर नहीं बन सकते। तो मेरा 1,000 रुपया भी वापस दिया, मेरा फोटो वापस दिया, बोला वी कांट टेक द रिस्क, और रिजेक्शन। सो आई सेड ओके, अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टेइंग विद यू ना। मैं निकल गया उसी समय तब। तो ऐसे थैंक यू, मैंने उनको कुछ बुरा नहीं बोला, मैंने आपकी वजह से मुझे मौका मिला, राजमाची चढ़ा, देखते हैं आगे। और ऐसे ही आई नेवर क्राइड, नेवर बैक टू देम, नथिंग। जब नो बोल दिया तो खत्म हो गया स्टोरी। मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद मैं बहुत जोर के रोया, आई स्क्रीम्ड अ लॉट, मैंने गॉड व्हाई मी। और वो ऐसा हुआ कि व्हाइल complaining, God gave me vision and बोला people like you are rejected from so many communities, so why don't you collect them and start your own company, like your own club. And that's what the thought came, and that's how you started that the bikers, yes, bikers community for differently abled people. It's called Convoy Control Club. Convoy Control Club. Yeah. Okay. The Convoy name came from Jaipur. वो हमारा खुद का नाम नहीं है। जयपुर में उसी साल आई वेंट फॉर ऑल इंडिया राइड ऑन माई रॉयल एनफील्ड डुक डुक टू फाइंड डिफरेंट हीरोज, आई कॉल देम माई हीरोज, डिफरेंट लेबल, और उनका ऑडिशन लिया कि कैसा बाइक चलाते क्या करते। तो मैंने डिसाइड किया कि हम सब लोग अपनी अपनी कौन सी बाइक लेके, आई डिसाइडेड गो विद ऑल द रॉयल एनफील्ड। पर उस समय रिसेशन चल रहा था, तो रॉयल एनफील्ड कंपनी नेवर सपोर्टेड मी। वो मुझे स्पॉन्सर करने वाले थे। आई सेड एक जैसे बाइक होगी सब, तो वो इजी होगा मेंटेनेंस के लिए। करेक्ट। बट वी कुडंट गेट द स्पॉन्सरशिप। तो हम लोग ने अपनी अपनी बाइक, कोई यामा में था, कोई पल्सर में था, कोई हीरो होंडा में था, कोई 100 सीसी में था, तो 150 सीसी, कोई 350 सीसी मेरी। तो वहाँ एक क्लब वाले को मिले हम, उन्होंने बोला भैया ऐसा ऐसा। मैं बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, पर ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोलता है, उन्होंने अनाप शनाप बोला वो क्लब को मिलने दो, मैं वैसे करूँगा वैसे करूँगा। तो बोलता है फॉर नाउ यू कैन डू वन थिंग, वी हैव ए क्लब एंड व्हाई डोंट यू टेक द नेम ऑफ आवर क्लब एंड राइड ऑल ओवर इंडिया। तो वो उन्होंने मुझे नाम दिया। That's how the Convoy Club came into being. So the base is जयपुर। मैंने मुंबई स्टार्ट किया। फिर मुंबई के बाद मैंने उनको पूछा कि हम लोग चैप्टर बनाना चाहते हैं। Then after that I started chapters. We have 9 chapters in India now. Wonderful. And the majority of differently able are more than able-bodied riders. So 2011 we decided to go. But here now it will be not a fun ride or a, बोलते ना ऐसा मजा वाला राइड नहीं। To Ladakh. लद्दाख, हाँ. yes. एक प्रोजेक्ट बनाया बियॉन्ड द ऑड्स।
Beyond the odds. वी आर इन द ऑड कंडीशन, लाइक यू नो, किसका हाथ खराब है, किसका पैर है, हाथ नहीं था, आर्टिफिशियल हैंड है, दोनों पैर एम्प्यूटी है, झारखंड से राइडर, मुझे जयपुर में मिला आर्टिफिशियल लिम्ब कंपनी में, और ऐसा उदास बैठा था, मैं अपने रॉयल एनफील्ड से गया और मेरा पैर मतलब फुल पैंट पहना था, ही नेवर रियलाइज कि मेरा हाफ है, तो मैं उसको देखते ही सीधा उसका दोनों मिलो, इतना उदास क्यों बैठे, झारखंडी ना, अरे कहाँ बताए भैया, हमारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। बोला कैसा, तो बोलता है अरे गोड़ ही चला गया। बोला तो बोला क्यों, वापस नॉर्मल हो सकता नहीं जिंदगी, अरे कहाँ, बोले तुम अभी फटफटिया में आए, तो बोलता है तुमको क्या मालूम, बोलता है अपंग होने के बाद क्या होता है ज़िंदगी। बोला एक सेकंड, पैंट ऊपर करके बताया, एकदम हैरान हो गया। तो बोलता है क्या मैं भी चला सकता हूँ। बोला आपके ऊपर है सर। उन्होंने पैर पहना, दोनों पैर, तो बोलते जब मेरा गोड़ था ना, उस समय मेरे पास पैशन था, और पैशन बाइक मतलब हीरो होंडा पैशन। तो मैं बोला ठीक है, आप पहला पैर पहनो, 2 दिन मैं यहाँ पे हूँ, पैर से चलो, मैं देखता हूँ आपकी चाल कैसे है, उसके बाद गाड़ी का बंदोबस्त भी करूँगा मैं। वहीं के स्टाफ से उसका गाड़ी लिया, पैशन ही, और उसको गाड़ी में बिठाया पीछे पकड़ के, और किक मार के फुल जोश में गाड़ी चलाया उसने। बोला यू आर सेलेक्टेड, उसका नाम लिस्ट पे सबसे ऊपर था, और उनको प्लान बताया कि लद्दाख जाना है, और बोला ठीक है, मेरा नंबर दिया। सर वहाँ मुझे हमेशा फ़ोन करते थे, हर 3 दिन के, भैया मेरा नाम है ना क्या मेरे को निकाल दिए। बोला नहीं आपका नाम है। तो ऐसे करते करते हमने बोला अभी तो तैयारी हो गई, पैसा पानी कुछ नहीं, मेरा गोल्ड चेन बेचा मैंने, मेरे एक 1976 की रॉयल एनफील्ड थी, अब तक कैसे मेरे पास बहुत सारी बाइक हो गई थी, तो वो बाइक मुझे बेचना पड़ा क्योंकि फंड नहीं मेरे पास, क्योंकि डिसाइड किया तो जाना है। तो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम पड़ा, और एक उस समय न्यूज़ आया कि 2010 में क्लाउड बस्ट हुआ था लद्दाख में, और उसकी वजह से बहुत सारे घर बह गए, और वहाँ पे 24/7 ठंडी होती है। तो हमारे अंदर, मेरे मन में, आई डिसाइडेड कि नहीं कुछ अलग करना है, कुछ कॉन्क्रीट करना है, कुछ तो अलग करना है। तो मैंने अपने टीम लोग को बोला कि भैया अपन जाएंगे, अपन कुछ ऐसा करेंगे कि वहाँ पे लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो प्लान घर का नहीं था, हम सोचो कुछ कंबल विम्बल लेके जाएंगे, या कुछ राशन पानी, या कुछ राशि, क्योंकि आज के डेट में ना पैसा किसी के हाथ में देगा तो बहुत कुछ खरीद सकते अपने लिए। शायद कंबल उसके पास ऑलरेडी 4-5 दिया होगा किसने, शायद उसके पास राशन ना हो तो पैसे से राशन खरीद सकता है। But you ended up building houses. So yes, so I came to know about one organization called Habitat for Humanity. Habitat for Humanity is organization, they build houses for disaster के लोग ना, and remote places में. So I went and approached them saying that we will do this task. तो बोलता what you are expecting from us. तो मैंने सीधा बोला sir, you can provide our fuel, our stay and our food. एंड रेस्ट वी आर 6 of us, 7 of us ना, तो हम लोग 7 घर के लिए हम लोग फंड रेस करेंगे। तो बोला ठीक है, आइडिया अच्छा है, पर आप लोग ऐसे कर पाओगे क्या? बोला जरूर कर पाएंगे। तो देन दे टुक अस टू देयर स्पॉन्सर्स। सो वन कंपनी वाज यूनाइटेड फॉस्फरस एंड HSBC बैंक। सो दे सेड हमारा एक मीटिंग होगा, वो टाइम पे आपको आके पिचिंग करना पड़ेगा। आई पिच देम सेम थिंग। बोला हम लोग करेंगे। तो बोला कैसे करेंगे? बोला रूट मैप बताया, ऐसे ऐसे जगह से जाएंगे, और एवरी सिंगल पिट स्टॉप होगा, वहाँ पे कॉर्पोरेट्स और कुछ लोगों को बुला के हम लोग वहाँ पे पिचिंग करेंगे, एंड वी विल टेल देम टू सपोर्ट 1 brick। किसी से लाख रुपए मांगेगा तो सोचेगा 1 brick इज कॉस्टिंग 10 rupees। तो शायद कोई सुट्टा मारता हो तो बोलेगा चला आज मैं सुट्टा नहीं मारूंगा, 10 रुपए में एक ईटा दूंगा। इट इज पॉसिबल, एंड दैट इज हाउ little by little we collected 18 lakhs rupees. Wow. And supported 6 family, Wonderful. and we built 6 houses In Ladakh. I was married that time. I called my wife telling the project was successfully done. बोलते हैं you come fast home, अपना जो घर का ओनर है ना, घर से भगाने वाला 4 महीने का भाड़ा नहीं दिया है, तो दुनिया का घर बना रहा है, यहाँ अपना घर से भगाने वाले बोला। So like don't worry, God will provide. So लाइफ में कैसा होता है, इट इज़ वेरी इजी टू रिसीव, व्हेन इट कम्स अबाउट गिविंग सो पीपल हेजिटेट। सो गिविंग इज अ गिफ्ट, नॉट एवरीवन कैन गिव। सो दैट इज हाउ पीपल थिंक अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स। मे नो, कम आउट फ्रॉम दैट मे एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स।
देन द लाइफ विल बी हैप्पी. तभी जिंदगी का मजा आएगा. The art of giving is the most joyful thing we can experience, correct? लद्दाख में आपके और भी कुछ स्टोरीज हैं when you had the opportunity to meet Indian jawans Wow. and आपने उनको एड्रेस किया था और वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा भी आपके साथ हुआ था. So if we can talk a little bit about that, because I think Ladakh plays a very important role in your story. जब लद्दाख की बात आती है तो सच में ऐसा लगता है मैं लद्दाख में हूँ. सो द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 2011 एंड जैसे हमने घर बनाया और घर बनाने के बाद जैसे हमारा वेलकम हुआ और 15 अगस्त हमारा टारगेट था कि फ्लैग होस्टिंग करने टॉप ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटेबल रोड खारदुंगला. तो उससे पहले नीचे उन्होंने एक होस्टिंग का प्रोग्राम रखा था फ्लैग होस्टिंग के लिए और जैसे एंट्री मारा तो ऑलमोस्ट 20-25 जवान खड़े थे और कड़क सैल्यूट. हम लोग बाइक का एंट्री जैसे अंदर एंड दैट वाज फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ कि लाइक वी वर दे ट्रीट अस एज अ सोल्जर कि कोई बड़े ऑफिसर ला रहे हैं. एंड देन वहाँ पे बोला गया कि हमारे बीच में विनोद रावत है और फ्लैग होस्टिंग करने विनोद रावत आएंगे. दैट वाज बिलीव मी मेरा लाइफ का सबसे बड़ा रिवॉर्ड अवार्ड. वो आपने जो कभी बोल सोचा भी नहीं सकता था. इट वाज अ सरप्राइज फॉर कभी यू. नहीं सोच सकता है. हाँ. कभी नहीं. और वो चीज़ उन्होंने वो मौका दिया एंड आई रियली थैंक गॉड कि वही मैं बोला फिर फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर आज ओनली बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस. फिर वहाँ से हम लोग होस्टिंग करके हमारे फ्लैग लेके टॉप में गए. तो यहाँ चला गया और उधर जाने के बाद हम लोग को रास्ते भर में पूरा बर्फ़ मिला. वी वर टॉकिंग अबाउट द स्नो. तो टॉप में जब पहुँच रहे थे खड़जुंगला में बर्फ़ ही बर्फ़. तो जो एम्पिटी होते उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है बट जो पोलियो वाले होते हैं तो एक राइडर पोलियो वाला भी था तो उसका पैर अकड़ गया और हाथ पूरा ऐसा अकड़ गया. तो इससे विनोद देख क्या हो गया. तो मुझे लगा कोई इंसेक्ट पकड़ा है उसने. तो आई एम फाइंडिंग द इंसेक्ट. बोलता अरे नहीं रे मेरा हाथ जम गया बोलता है. एंड देन उसका ग्लव्स निकाल के उसको थोड़ा ये दिया. फिर हमने वहाँ पे चारकोल से थोड़ा हमारे पास सब प्रिपरेशन था वो मैं सेट करके गया था. फिर हमने वापस नेशनल फ्लैग वहाँ पे टॉप में होस्टिंग करके वहाँ पे नेशनल एंथम किया. सो एवरी टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द लद्दाख तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. तो वहाँ पर उस समय 2011 में जब मैं हम लोग गए तो मेरे जो राइडर्स लोग सब अपना राइड कर रहे थे पर मेरी नज़र एक ग्रुप पे गई और सब ऑफ राइडिंग बाइक्स मतलब डर्ट बाइक्स और उसमें कुछ नंबर लगा हुआ था कंपटीशन नंबर. एक को पूछा क्या है. बोला दिस इज कॉल्ड रैली रेस और ये लद्दाख में सालों से हो रहा है और वो सब राइडर्स लोग हैं चारे उनका रेस चल रहा है. मतलब वाह. तो मैंने उसका डिटेल निकाला. इट्स कॉल्ड रेड द हिमालय. रेड द हिमालय. हाँ. जो डकार रैली होती है जी. वैसे ही वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड में जो रैली होती है ये रेड इंडिया में होती है और हिमालयन मोटर स्पोर्ट्स उसको ऑर्गेनाइज करता है हिमाचल से मिस्टर विजय करके विजय परमार. सो ये सब हुआ और बस सपने कभी ख़त्म नहीं होती. बाइक चलाने का सपना पूरा हो गया. नकली पैर मिल गया. नकली पैर का सपना पूरा हो गया. अब बोला गॉड ये रैली खेलना है मुझे. तो उसकी पूरी तैयारी चंक ऑफ पेपर पूरा डेटा निकाला पढ़ा क्या क्या लगता है गाड़ी कैसे लगती है एक्लामेटाइज होना पड़ता है. Was there a special kind of bike for that? पीपल मॉडिफाई आपको जीतना है तो उन लोग स्पेशल बनाते हाई एल्टीट्यूड के लिए अलग से. तो मैं फिर 2011 से जो जाना शुरू किया हर साल जाना शुरू किया. Wow. बिकॉज अभी मेरा फोकस मेरा टारगेट था रेड द हिमालय. अब कब होगा मालूम नहीं क्योंकि अगर वो क्लाइमेट में 18,000 फुट के ऊपर आप रेस खेल रहे हो और 2,400 किलोमीटर का रैली होता है. एवरी डे वाज क्वालिफाइंग राउंड
ये 4 दिन की रैली होती है, रैली रेस। उसमें टॉप मोस्ट राइडर लोग टीवीएस कंपनी, यामाहा कंपनी, रॉयल एनफील्ड कंपनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका से राइडर्स लोग आते, चैंपियंस लोग। वाह, मैं वीडियोस देखना शुरू किया, देख के एकदम जोश, बोला यस मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। कौन सा साल आपने पार्टिसिपेट किया? 2018 20th एडिशन ऑफ रेड द हिमालय। हम्म, फिर मैं 2017 को, मैं 18 को किया, 2017 को सर मैं मनाली से साइकिल लेकर खरदुंगला गया 9 दिन। दिस वाज जस्ट फॉर प्रिपेयरिंग। स्टेमिना, हाँ हम्म। वो सब जरूरी है, सिर्फ चलाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्लाइमेट के साथ भी रहना है। आपके पास 3 चैलेंजेस है, 1 राइडिंग स्किल, 2 टेरेन जो डेंजर रोड से स्किल आपका, और फिर वो क्लाइमेट में सर्वाइवल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिकनेस आएगा, कुछ अगर आपको स्टेमिना नहीं है, आप नहीं चला पाओगे। ये जो 3 चीजें आपने बोली, जी at the end of the day it's all about your mental strength. हाँ। How it's you win half the battle here, right? और गाड़ी ने साथ नहीं दिया तो खत्म रेस। एवरी डे वाज क्वालिफाइंग राउंड। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बस मेरा टारगेट डेली स्टार्टिंग लाइन में खड़ा है। So what happens at the end of 4 days? फर्स्ट डे आई कंप्लीटेड, तो फिनिशिंग लाइन में वो लोग एक चिट्ठी देते, तो उसमें होटल का नाम होता है, अच्छा, तो मतलब यू आर क्वालिफाइड, qualified. यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट Next डे। day. तो जैसे ही फिनिशिंग लाइन में जाता था तो सेकेंड डे भी मिला, हाँ, so you're qualified. बच गया। Third day. Praise God. On the final day, next day was this trophy distribution. वो मेरा बस गोल ये था, विदाउट फॉल, विदाउट DLF, डू नॉट कंप्लीट करके होता है ना DNF का, मेरे को रेस कंप्लीट करना है। और मैंने वो रेस कंप्लीट किया। विजय परमार सर, अच्छा उससे पहले कैसे, सॉरी, गोवा में बाइक वीक फेस्टिवल होता है एवरी ईयर वागातोर में, तो वहाँ पे मेरा टॉक था, बाइक वीक फेस्टिवल था वहाँ पे। 2018 only. IBW, नो 2017, हाँ. 17 आई थिंक। तो मेरा टॉक था, मेरे पूरा बड़ा पोस्टर लगाया था, राइडर ऐसा। तो विजय परमार सर वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे थे कैसा BMW बाइक चलाना है वो। तो ही केम फॉर द शो एंड ही हर्ड दैट। तो उन्होंने मेरे को मिलने के बाद मेरे से बात किया, तो मेरे को मालूम नहीं था ये विजय परमार सर वो विजय परमार सर है। तो बोला, जेंटलमैन यू आर एलिजिबल फॉर द रेड द हिमालय, व्हाई डोंट यू ट्राई रेड द हिमालय। बोला सर आपने मेरे मन की बात बोल दी। बोला हाथ मिला, बोला इट इज़ माई ड्रीम। उन्होंने जेब से कार्ड निकाला, बोला दिस माई कार्ड, वेन एवर यू वांट टू पार्टिसिपेट जस्ट लेट मी नो, व्हाई डोंट यू कम नेक्स्ट ईयर ओनली, बोलता है। बोला डेफिनेटली आई विल कम। अब सर उसका इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू, मोटर स्पोर्ट्स इज द एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। और मैंने गाड़ी ले लिया सेकेंड हैंड, उसमें इंजन बिठा दिया, सब तैयारी कर दी, और फिर अभी स्पॉन्सर क्या करेगा। सो प्रेज गॉड, विजय जो वर्ड है, वी इज़ अ विक्ट्री फॉर मी। मेरे बॉस है, उनका नाम भी विजय है, वो विजय चौररिया है। मैंने सर को अपना ड्रीम शेयर किया, बोला सर 10 साल से मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, कितना एक्सपेंस आएगा। मैंने सब मोटा मोटी करके दिया, 2,50,000। अपना एडमिन वाले को बुलाया, बोला ये रेस के लिए जा रहा है, इसका एक भी कमी नहीं होना चाहिए, प्रोवाइड हिम ऑल द मनी। थैंक गॉड 20,000 रुपीज़ उसका रजिस्ट्रेशन फीस है। एंड देन समहाउ आई गॉट ऑल द स्पॉन्सर्स, निकल गया। और फिर आर्टिकल आता है और उधर कॉलिंग होता है स्टेज पे, 3, 2, 1 ऐसे बुलाते हैं। द विनर ऑफ दिस थर्ड प्राइज बोलता है, एंड ही इज़ अ स्पेशल पर्सन एंड आई मेट हिम इन गोवा। और तब मुझे मालूम पड़ा कि विजय परमार सर इज़ अ ऑर्गेनाइजर फॉर दिस रेस एंड ही इज़ द मैन बिहाइंड एवरीथिंग। ओ माई गॉड, वेरी हम्बल, वेरी सिंपल। एंड मुझे स्टेज में बुलाया एंड आई सेक्यूर्ड थर्ड अमॉन्ग 380 एबल बॉडी राइडर्स। Wonderful. I was only one definitely able, and praise God, that dream also came true in my life. So, which is, nothing is impossible, I believe, in this world. Nothing. Yes, If absolutely. you have a good intention, अच्छी सोच है आपके, अच्छे विचार है, तो परमेश्वर आपको जरूर सपोर्ट करेगा। क्या होगा, एक बार फेल हो गया आप, try it again, try it again. I always tell people, like, first they will mock you, then they will follow you, and that's what happened in my life. Absolutely. पहले उन लोग आप नाम रखेंगे आपका, पर एक दिन उन लोग ही बोलेंगे नहीं यही है, एंड पीपल स्टार्टेड। तो ऐसे जर्नी करते करते
वो ड्रीम भी मेरा पूरा हो गया। इसके बीच में MTV Roadies also happened sometimes before the Ladakh journey, right? Roadies was like, वो एक And there are some very interesting stories around it. साहब मैं बोलूँ सच्ची बोलता हूँ, मेरा जो बाइक का जो क्रेज Hmm. वो मेरा ही था, पैशन, लव। मैं आज भी चलाता हूँ, मेरे को कितने लोग वीडियो दिखाते हैं, सर ये आप है। यूट्यूब में अचानक देखते हो कोई पीछे से शूट करता है मेरे को और वो डाल देते हैं रील में, बोला यहाँ पे, बोला यार ठीक है वही बोला। तो ऐसा था कि 2005 में रोडीज सीजन 2 चल रहा था। Hmm. टीवी वगैरह में तो संत था, मतलब गिटार बिटार बजाता था, बाइबल पढ़ाई करता था, तो टीवी देखने को टाइम ही नहीं, टीवी कुछ नहीं था उस समय, मोबाइल भी इतना ये नहीं था, अपना जो यूट्यूब इतना नहीं था। तो मैं जिम से आ रहा था, सैंडो बॉडी ऐसा डाला था और ऐसा मंकी कैप डाला था, मेरी बुलेट थी, वो चला के मैं रविंद्र नाट्य मंदिर, You should always call it Dug Dug. Dug Dug, yeah, my Dug Dug. So Ravindra Mandir से I was going from there, passing from there, सिद्धिविनायक मंदिर के बाजू में, तो I saw huge line, big line था, और it was around morning time ना, तो यंग लड़का लड़की लोग सब ह्यूज। तो मैं बोला कुछ बट रहा रहेगा शायद, या तो कॉलेज का एडमिशन को तो भी, बट एक ऐसा देखा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक येलो बाइक थी और वो ऐसा रोटेट हो रहा था, मतलब नीचे से वो डिस्प्ले में रखी थी। तो मैं साइड में लगा के एक बच्चे को पूछा, भाई क्या चल रहा है? बोलता है अरे मालूम नहीं रोडीज का ऑडिशन। मैं बोला रोडीज क्या है? मेरे को नहीं मालूम था रोडीज क्या है। बोलता है एक एडवेंचर शो है, जो जीतेगा उस शो में ना ये बाइक उसको गिफ्ट मिलेगी। क्या बात है, तो मैं आता बोला, मैंने बाइक लगा दिया और मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। सो आई वाज थर्ड लास्ट इन द लाइन से अराउंड 10:30 का टाइम पे। तो बाय द टाइम वो गेट ओपन होता आगे का, लोग घुस गए अंदर चले गए। मेरा टाइमिंग आने तक मतलब 15-20 बच्चे और बाकी थे। बोला टाइम अप, अंदर फुल हो गया, आपको जाने को मिलेगा नहीं। बोला नहीं मिलेगा, जान दो, बोला नहीं है अपने लिए। तो ऐसे ही निराश होकर निकल रहा था, तो एक कैमरामैन बड़ा कैमरा लेके बोला सर एक मिनट आप थोड़ा एक बाइट दोगे? बोला काय का बाइट यार, उधर सिलेक्शन ही नहीं हुआ, अंदर जाने नहीं मिला। बोला तो काय का बाइट नहीं मांगता? बोला नहीं आपको एक बात बोलूं? बोला क्या? आपको ऐसे लगता नहीं आप सचिन तेंदुलकर जैसे दिखते हैं? मैं बोला भाई मैं सचिन तेंदुलकर जैसे नहीं दिखता है, वो मेरे जैसे दिखता है, बोला क्योंकि मैं उससे 1 साल बड़ा हूँ। तो बोला सर 1 मिनट थोड़ा कैमरा में बोल दो आई लव प्लेन। मैं बोला बोलूँ? बोला हाँ। मैं बोल दिया आई लव प्लेन। बोलता तेरा आवाज़ भी उसके जैसे है। तो मैंने बोला आई लव प्लेन, तो मेरे को उसने नंबर दे दिया एंड ही अलाउड मी टू गो इनसाइड। सो दैट इज हाउ I got a chance actually. Just that, because of that, only because of that. Just to enter inside for the PD. So we must audition. We must thank Sachin Tendulkar for this. And so वो रोडीज उधर स्क्रीन में दिखा रहे थे ऑडिशन ऑडिटोरियम के अंदर, तो वहाँ थोड़ा मैंने ग्रैब कर लिया कि व्हाट इज रोडीज। बोले ये तो मैं आराम से कर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जस्ट Roadies is a concept where in my time it was only 7 participant. अच्छा। 7 participant from 7 different state. अलग अलग प्रांत से अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग मतलब कोई कॉलेज के कोई कॉलेज का नहीं है, वो सब मिलकर जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा, अभी तो खिचड़ी हो गई है कि इनके विचार क्या है, इनकी सोच क्या है, ये रहते कैसे साथ में, कैसा। वो मैसेज ये है कि हम कोई भी प्रांत के रहने दो, किधर के भी रहने दो, कैसे भी रहने दो, पढ़े हुए हो क्या बिना पढ़े, मैं भी सबसे कम पढ़ा मैं ही था, और इन लोग मिलकर एक साथ कैसे रहते हैं, सरवाइव कैसे करते हैं। हम लोग को उस समय 500 रुपये दिया करते थे, और वो 500 रुपये में हम लोग 7 जन अपना खाना पीना करने का, फिर एडवेंचर करने का, फिर उसके बाद तो इट्स अ रियलिटी शो, TRP बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ मसाला मांगता है। And 24/7 कैमरा, right? 24/7 कैमरा लगा रहता था, और कभी भी उठा देते थे रात को 2 बजे, चलो। बट आपका मोटिवेशन सिर्फ वो बाइक था कि मुझे मेरा टारगेट, मेरा फोकस वही था। मेरे को ये सब चीज़ों से कोई डर नहीं लगता था, एडवेंचर कुछ नहीं। एक पार्ट था जिसमें आग में चलना पड़ता था, तो बोला ठीक है मैं भी चलूंगा। बोला विनोद को छोड़ के सब चलेंगे। बोला क्यों नहीं मैं? बोला आपका पैर नहीं है। अरे बोला मेरा पैर फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, सब प्रूफ है। बोला चलेगा भी। तो मैं चला वो चारकोल में। सो फाइनली आई गॉट वोटेड आउट सेमी, मतलब 1-2 एपिसोड पहले मेरा वोट आउट हो गया। फिर रीयूनियन हुआ, मेरे को वापस बुलाया गया। एंड फर्जी ने ऐसा था कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनको ही मिलेगा, जो वोट आउट हो गया उनको बाइक नहीं मिलेगी। निराश नहीं होता मैं कभी लाइफ से,
मतलब ठीक है, आई टेक अनदर चैलेंज Hmm. टू विन दैट बाइक और वट एवर इट इज, और मैं अपने आप से खरीदूंगा कभी, बिकॉज दैट टाइम इट वॉज लॉन्च इंडिया का पहला सुपर Super बाइक bike था, 226cc. Hmm. Hmm. और फरदीन ने बोला आई हैव बीन वाचिंग द एपिसोड, आई रियली लाइक ऑल योर एपिसोड्स, और जो भी स्टंट्स एडवेंचर जो भी आपने किया एकदम बिंदास, बोला पैर का तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, बोला This is Fardeen Khan the फरदीन actor. खान. तो ही हग्ड मी और ऐसे हैंडशेक किया. तो अपन मैं बोला ना आई कम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, तो ऐसा कोई अंडर द टेबल या ऐसा कुछ देगा तो अपने को कुछ अजीब लगता है. तो उसके हाथ में कुछ था, तो बोला टेक इट. तो बोला बट डोंट सी नाउ व्हाट इट इज, पॉकेट में रखो, मैं जाने के बाद देखना. Hmm. और मेरा वो शॉट था जब मैं वोट आउट हो गया था, मेरा पीला बाइक था करिश्मा. तो मैंने रघु को बोला कैन आई जस्ट गो एंड सी माई बाइक वंस. Hmm. तो मैं जाके उसको हक किया, मेरे को मालूम नहीं क्या हो रहा है, उसको हक किया, किस किया, मेरे को आंसू भी आए मेरे, मैं निकल गया. तो जैसे मैं बाहर आया तो लोग, मैं फैशन स्ट्रीट में कुछ खरीद रहा था, तो मेरा फ्रेंड साथ में था, तो कुछ लड़कियों का टीम था, बोलता सर आप रोडीज़ में थे ना. मैं बोला नहीं मेरे जैसा दिखता है कोई, ऐसा 2-3 बार लोगों ने मुझे पूछा. तो मेरा फ्रेंड बोलता नो ही इज द सेम गाय रोडीज. इतना जोर क्या कि पहली बार जिंदगी में कोई अननोन लड़की मेरे को इतना जोर किया गले लगाए. तो दैट्स हाउ वो देखा तो देखता है तो उसके अंदर की था. अच्छा. एंड MTV गिफ्टेड मी सुपर बाइक, माय करिश्मा. Oh, दैट वाज माय wonderful. फर्स्ट ब्रांड न्यू बाइक. Hmm. That is how till today it's been I think more than 10 11 12 years, I don't know, people still know me as a roadies. Hmm. And MTV रोडीज ने जो मौका दिया है Hmm. और बता दिया कि सोसाइटी में एबल डिसेबल कोई होता नहीं है. Hmm. आपकी एबिलिटी है तो आपको जगह है, Hmm. आपकी एबिलिटी नहीं है तो आप अपने आप को बनाओ, प्रिपेयर योरसेल्फ. Hmm. It's actually not disabled, it's being differently abled. And in fact, when I Googled you, if I say Vinod Rawat roadies, it comes up. So ये tag आपके साथ है. थैंक यू. या But I want to go back to Ladakh. वो जो आपने differently abled टीम के साथ बनाकर आपने जो घर बनवाया, जी. and I think that is now a part of your life because now you have a foundation यस. with differently abled people and you are trying to bring about some kind of a change in the society, right? Tell me something, talk to me about this foundation. What is the goal? What have you done so far? What are your future goals for this? Vision क्या है इसका आपका? सी ऐसे होता है, वी promote safety also, where our security and safety says ki differently able are not allowed to ride a motorcycle without any modification. So like we have to have side wheels or a side car. But in that case कैसे होता है कि some people have their dreams कि उन लोग, तुम उनका ट्रायल लो ना, टेस्ट लो, उनको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करते RTO, और कुछ लोग इलीगली चलाते अपने सपना पूरा करने के लिए. आई रिक्वेस्ट देम टू हैव अ लीगल लाइसेंस एंड ऑल एंड देन राइड. अच्छा, हम समाज में ये मैसेज देते हैं कि लोग अपने लाइफ को ग्रांटेड बोलते, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं. पुलिस के लिए उनको दिखाने के लिए, पुलिस के नाम के लिए सिर्फ हेलमेट पहनते हैं, नहीं तो हाथ में लटकाते या तो मिरर के ऊपर लटकाते. तो फाउंडेशन का जो गोल है, जो मकसद है, समाज में एक मैसेज देना कि हमारे जैसे दिव्यांग लोग राइड वगैरह करते हैं विद सेफ्टी गियर्स एंड ऑल. पैर तो नकली मिल जाएगा, सर नकली नहीं मिलेगा. Right. तो हेलमेट पहनो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार के लिए, ना कि पुलिस को दिखाने के लिए या पुलिस से बचने के लिए. और ये सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है. सबके लिए. Absolutely. एग्जैक्टली. तो वही मैं बताता हूँ कि हम लोग स्टेज में जाके बोलते हैं वी डोंट हेजिटेट. मतलब नकली पैर तो मिल गया, जो कि मेरा बाइक एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरा रेगुलर एक्सीडेंट था, मगर बहुत सारे बाइक एक्सीडेंट केसेस हैं. तो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के थ्रू क्या होता है ना सर, इनके माइंड सेट चेंज हो जाती है. घर में जो नेगेटिविटी है, माहौल है, उससे वो बाहर निकल जाता है और अपना एक अलग जिंदगी जीता है. और अभी तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है हमारे लिए, करेक्ट, विच इज कॉल्ड पैरा स्पोर्ट्स. पैरा स्पोर्ट्स के माध्यम से भी बहुत सारे दिव्यांग लोग आज आगे, उनका नाम है, जो एक जमाने में कुछ भी नहीं था, उनकी जिंदगी में अंधकार छावी थी. टुडे दे आर अ स्टार एंड दे आर एनलाइटिंग अदर्स.
Just see the tremendous change. Are you associated with any of the para sports? Definitely, I am para fencer. Mm-hmm. I'm a national player. Mm-hmm. And out of the subject, मैं para basketball player भी हूँ. मैं वहाँ आऊँगा because there is a different story along with your basketball. So yes. वो मैं वहाँ आऊँगा. But you participate in national championships? I've done 3 nationals, Chennai, and twice in Haryana. So I've won the medals also. Bronze medal लाया हूँ. कुछ तो लाया मगर क्योंकि I think participating, being a participant itself, to my mind, the first step, मुझे लगता है कि that you're a winner when you participate in any event, in any sport. And again here it comes like जब किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि पैरा स्पोर्ट्स होता है, अलग अलग गेम का नाम बताया, बोला क्या क्या गेम होता है, बोला ये गेम, तो एक पार्ट आया, बोला राइफल शूटिंग होती है, आर्चरी होती है और फेंसिंग होती है. तो फेंसिंग वर्ड मेरे लिए नया था. बोला वो क्या है, तो उसने इशारे से क्या फेंसिंग, बोला ये क्या था, बोला तलवारबाजी. तलवार, अरे दे मेरे को आता चला नहीं. सो एक जमाना ऐसा था जो बुराई के लिए जो चीज उठाता था मैं, आज वही स्किल को लेकर मैं मेडल जीत रहा हूँ. Wonderful. सो बुराई को भलाई में कन्वर्ट करके, एंड टुडे आई एम अ फेंसर, आई एम पैरा नेशनल फेंसर, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट to participate in international and win medal for India. I have no doubt you will do that. मेरे फादर ने मुझे एक कोट, क्योंकि हम लोग, my dad was one of my biggest inspiration, still is in that sense, कि imagination is the biggest form of courage. जब तक हम imagine नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते. You visualize, you imagine, जैसे आपने हर चीज़ imagine किया कि ये मेरा है, मुझे ये करना है. But para basketball also has brought a sweet turn to your life. And मैं, if it is okay with you, I would love to hear that beautiful love story. Well, 43 years back, I met an accident where I lost my leg. And 3 years back again, I met a new accident where I found something. I never lost anything in that accident. Where incident was, we practiced at Kalina basketball court, indoor basketball court, where girls and boys, they both play together. And so many boys and girls, they are paraplegic. Below abdomen, they have no sensation. And the life is very difficult for them, but the way they play and the way they come for the practice, so you see the brightness in their face, और जो खुशी जो cheer they have, so उनको देख के मजा आ जाता है. And मैं भी दिव्यांग हूँ, तो मैंने भी वो ज्वाइन किया, किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो आई सपोर्ट देम, आई हेल्प देम एवरी टाइम. उनका व्हीलचेयर है फिक्स करना, बास्केटबॉल उठा के, मतलब बॉल उठा के बास्केट से लाना, ये वो. एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग विद देम. तो खेलते कूदते तो एक बार एक व्हीलचेयर से मेरी व्हीलचेयर टकरा गई जी. शी वाज अ प्रीटी लेडी, सो लाइक बुरा नहीं, किसी को देखना चाहिए ऐसा, तो बट आई डोंट नो, लव एट फर्स्ट साइट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आई एम रीमैरिड नाउ. My first wife passed away. And यहाँ पे देखा तो मुझे अच्छी लगी वो लड़की. Then I started finding about herself, what she is doing. And एक दिन उनको पूछा कि what do you think, when are you going to get married? बोलते हैं come on, मेरे से कौन शादी करेगा. और शादी का कुछ सोचा नहीं. I went and spoke to their parents also. घर पे आना जाना शुरू किया. We were good friends. We used to go for a tea, coffee. So, but I thought you never drank tea. No, I don't drink, but I can take, no? I can take you also. So, I'm just yeah. फिर हम लोग we started going for outing, like, and chit chat होता था, बातचीत ऐसा. तो once I went to her house also. I asked her mother, बोलते no, she's happy alone, single, she's happy, we are there, no? Why she need marriage and all? And who will marry her? तो मैंने सीधा बोल दिया, I'll marry her. And she was shocked. For them, obviously by God's grace, for them I'm a star, like,
MTV रोडीज है, छोटा मोटा इधर उधर दिखता है, पेपर में दिखता है, टीवी में दिखता है, तो यार ये आदमी मेरे से कैसे शादी करेगा? बोला नहीं, बिलीव इट, दैट्स हाउ it's been 7 months. 10th March we got married, and she become my life partner now. Wonderful. And has anything changed after that? Yeah, definitely. What my goal, my intention is, she has been dependent about with her parents, like मम्मी पापा का सपोर्ट था हर चीज के लिए, बट आई एम ट्रेनिंग हर टू बी इंडिपेंडेंट. व्हीलचेयर बाउंड का क्या होता है कि ना, so many things they need someone support or help. So I show her so many videos जो फॉरेन के, जो लोग खुद अपने आप से हाँ, बट उसमें भी ये बात है कि व्हीलचेयर, उनकी व्हीलचेयर अपने व्हीलचेयर में बहुत डिफरेंस है. उनकी व्हीलचेयर 6 to 7 kgs की होती है, जो कि अपनी व्हीलचेयर 20 to 18 to 19 to 20 kg. Oh, that's that different. हाँ, तो हम लोग एज अ मेल वी कैन जस्ट पुल विद वन हैंड, बिकॉज अपन, और फीमेल्स कैन नॉट. और वो डिसमेंटल करके फोल्ड भी नहीं होता बराबर से, तो कार में रखना है. ऑटो रिक्शा वाले लोग उनको देखते ही कोई लेते नहीं, क्योंकि उनका रिक्शे का कवर फट जाएगा. ये सब चीज़ें मैंने देखा जब. सो वी आर, मतलब नॉट ओनली फॉर माई वाइफ, थ्रू हर वी आर गोइंग टू हैव ए कैंपिंग वेयर वी आर गोइंग टू ट्रेन अदर्स हाउ टू बी इंडिपेंडेंट. वो लोग खुद का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं. बहुत सारी बातें हो रही है फील्ड में. देन अबाउट द accessibility. Now when we go for a coffee or dinner or something like that, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ना रैंप नहीं. I think there are some initiatives which are being taken now, but for a long time हमारे country में we never really did. It is been taken, but उसमें पूरा इम्प्लीमेंट नहीं किया है. सर आप देखिए आज लोकल रेलवे स्टेशंस में नहीं है बराबर. कोई मेट्रो स्टेशंस में एलिवेटर है, लिफ्ट है, रैंप बराबर नहीं है. नाम के लिए रैंप लगा है, क्योंकि जो बनाता है रैंप वो डिसेबल नहीं है, वो एबल है ना. तो दे शुड कॉल समवन, और कोई बैठो, प्रिटेंड करो व्हीलचेयर में बैठ के, और खुद नीचे लाओ, राइट, और ऊपर चला के लेके जाओ. करेक्ट. तो ये सब चीज़ों को कोई ध्यान नहीं देता. Because this is, I think, where we must really look towards the West. Because I've lived in the US, I know वहाँ पे even parking reserved for special needs. Special able, हाँ. तो वो है. I think these are some of the things which we have to take care. But I think more than all of this, I believe, I hope you agree that the people who are differently abled, the people who are, they must learn to accept. उनके अंदर एक acceptance होना चाहिए कि that there is nothing which we can't achieve. हम सब कुछ कर सकते हैं if we put our will. जी. I think to a large extent हम जैसे अपने आप अंदर फील करते हैं, वही एनर्जी हम बाहर भी स्प्रेड करते हैं. If we show we are weak, then it will always be reflected. वीक पर, हाँ बराबर है, सही बात है. और वही चीज़ें हम, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग हर, ट्रेनिंग हर फॉर दैट. और यही लाइफ है, एंड वी आर हैप्पी. And I know that आपने कहा था शुरुआत में that you are also going to different places. You are teaching and you're also speaking at different forums. If I were to ask you that about this whole journey of yours, from whatever you shared right now, and how faith played a very important role in your life, and how things fell in place. If you were to go back, is there any one thing you would like to change? आपको लगता है कि कोई एक चीज़ अगर मैं change करता तो life would have been different, or you're just... See, as you told, it is me, myself. If I have changed myself that time only, so शायद I would have been something different today. But today, whatever I am, still I'm happy with this. कि at least देर आया दुरुस्त है. I realized later on, long time back. But अभी मुझे समझ आया कि बाबा नहीं, वो पार्ट रॉन्ग था. I should have not left my house. Stay back and take the challenge there only. On that note, how's now your relationship with your siblings, your family? Yeah, definitely. अभी पूरी दुनिया जानती है. ऐसे ऐसे जगह से फ़ोन आते हैं जिनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ. मैं तेरे चाचा का बेटा हूँ. सर आप मेरे साथ मेरे भाई हो, कजिन हो, बहन हो. ऑफकोर्स गुड. मैं उसके लिए कोई घमंड नहीं करता हूँ. बिकॉज प्राइड इज़ द फर्स्ट स्टेप. जो इंसान के अंदर घमंड आया तो वो नाश हो गया. एंड वही मैं बोलता हूँ, यस हम सब
वो जो इनिशियल मुझे सपोर्ट चाहिए था वो टाइम नहीं दिया. तो why not we stand for those people who are weak? They need support, any kind of support. अगर कोई बोलता है नहीं रे वो बहुत पैसा खाता है, इधर से उधर से लूट रहा है अपना डिसेबिलिटी दिखा के, ठीक दो, उसका नसीब वो देखेगा आपके कुछ देने से. इफ यू वांट टू गिव विद cheerful heart. Don't give by crying and all. So that will not bless him also, and he will also not receive any blessing. So you want to give it with the cheerful heart, not like crying. गया 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 में तो गया है फिर. You are also अभी आपका खुद का एक यूनिट है, right? You have tied up with Jaipur Food, and you have a small factory, should I say? Yeah. In Parel. Parel. So I worked, actually I used to work for a bank, and later on after sports, adventure sports, I keep on branding about Jaipur Food. क्योंकि इनके माध्यम से मैंने अपना जिंदगी पॉजिटिव जिंदगी शुरुआत की है. एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो भी नाम कमाया इनकी वजह से. सोचो मेरा पैर नहीं होता तो शायद मैं कुछ और होता था. और इसी के लिए मैं जहाँ भी जाता हूँ उनका ब्रांडिंग करता हूँ. तो अभी पिछले 5 साल से माय मेन बॉस मिस्टर D.R. मेहता सर जो हमारे गुरु है, आफ्टर गॉड आफ्टर पेरेंट्स कोई है अगर इस दुनिया में तो वो एक इंसान है. सेबी के चेयरमैन थे, वॉज IAS ऑफिसर. उनके पैर में चोट लगने से उनको दर्द महसूस हुआ, और जब उन्होंने एक डिसेबल व्यक्ति को देखा जिसका पैर नहीं और बिना पैर के सारे वो चल रहा है रेंगते हुए, सो ही सेड व्हाई नॉट वी कैन स्टार्ट. और उन्होंने तब जयपुर फूड स्टार्ट किया था. आज हजारों ने लाखों लोगों को पैर बनाया फ्री ऑफ कॉस्ट. तो उन्होंने ऑफर किया कि विनोद व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन विद अस, क्योंकि सेंटर में पैर तो बना के देते हम लोग, पर पैर लगाने के बाद पैर मिलने से लगाने तक एक क्वेश्चन मार्क होता है जो मेरे पास था जब मैं सेंटर में फर्स्ट डे. Because you've experienced it. हाँ. तो वो व्यक्ति के मन में विचार होता है कि मैं चल पाऊंगा कि नहीं. तो वो उसके अंदर बिल्ड करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको हिम्मत देना, हौसला देना है. सो वो चीज़ के लिए मुझे लिया. एंड बिग सैलरी स्मॉल सैलरी वो छोड़ते हुए मैं यहाँ पे जुड़ गया फुल टाइम. और वो वर्कशॉप में हम लोग वही काम करते हैं 24/7. नॉट ओनली देयर, वी गो टू द रिमोट प्लेसेस, जैसे आदिवासी क्षेत्र में, गाँव खेड़े, गढ़चिरौली, ऐसे नक्सलाइट एरिया में हम लोग जाकर, हमारी बड़ी वैन है जिसके अंदर पूरा वर्कशॉप है, तो ऑन द स्पॉट पैर बना के देते हैं 4 घंटे में. Wow. That's awesome. वो फुल टाइम में अभी वहाँ कर रहा हूँ. And how many people are working with you here? Right now there we have 12 staffs. I have one senior sir with me, Mr. Vyas. तो मैं उनके साथ असिस्ट करता हूँ. जी. हाँ. So it is our center, it is not my center. We each and everyone individual are important role model वहाँ पे. हर किसी का important काम है, क्योंकि कैसा है, किसी की ज़िंदगी में एक नया आशा देना वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग का काम है. इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी जॉब, और फ्री ऑफ कॉस्ट. ऐसे प्राइवेट कंपनीज भी है जो लोग एक पैर का 4-4 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लेते हैं. So you are doing this completely Free of cost. Free of cost. And this is fireproof, waterproof, as I told. And they can come multiple times for the maintenance. Free of cost. हाँ. Wonderful, wonderful. This is a very, very. This has been one of the most insightful moments in this podcast journey of mine. Vinod sir, thank you for your time. Thank you so much for sharing your story. I'm sure you've already inspired so many people, and hopefully some of our viewers and listeners would be able to take inspiration. There is nothing that I believe what our human mind wants to achieve. I mean, let me put it this way. There is nothing we can achieve which the human mind decides to set its mind on. So I think this has been wonderful, great conversation, Vinod sir. I hope you continue to inspire as many people as you can and make a difference to their lives. And I hope the next time you meet, you would have inspired many more and your smile remains intact. Sure. So thank you for sharing this story. Thank you for coming over. Thank you very much. So that's it in this episode. I don't know how to sum up this episode except the fact that as I said before, there is nothing we can achieve once we set our mind and our goals to it. Keep the faith, keep believing in yourself.
And until next time, stay safe, stay healthy. Thank you. Thank you for listening to this episode of the Between Us podcast. This podcast was recorded at Manikpod Studios in Chembur, Mumbai. Our sound engineer is Moinak Chakraborty, and our producers are Arnav Dogra and Santosh Kumar. The video was processed at Viewfinder's Edit. The Between Us podcast uploads episodes weekly, and we'll see you next time.